Hello everyone, today I am going to start our next song that is called a baking soda. Firstly, I am going to discuss about what is the formula of baking soda. To bake in the formula of the baking soda, that is NaSCO3. It is also known as sodium hydrogen carbonate. It is also known as baking soda or sodium bicarbonate. Firstly, I am going to discuss about preparation method of baking soda and the chemical properties of baking soda. So baking soda, first physical properties, that is it is a crystalline solid and it is stable at room temperature. So next process, how to prepare the baking soda. बेकिंग सोडा प्रिपेयर करने के लिए हम सॉल्वे प्रोसेस या फिर अमोनिया सोडा प्रोसेस का यूज करते हैं. तो फर्स्टली आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ द सॉल्वे प्रोसेस. तो सॉल्वे प्रोसेस in which ammonia is react with carbon dioxide, water and sodium chloride. When ammonia is react with carbon dioxide, water and sodium chloride, then it will be converted into the baking soda NaSCO3 and ammonium chloride. It means when ammonia is react with carbon dioxide, water and sodium chloride, then it will be converted into the baking soda, or we can say that sodium hydrogen carbonate or sodium bicarbonate and ammonium chloride. That process is known as solve process, or we can say that ammonia soda process. The first preparation method of baking soda, that is called the solve process. Second preparation method, when sodium carbonate is react with carbon dioxide and water, then it will be also converted into the baking soda or sodium hydrogen carbonate or sodium bicarbonate. So that is the preparation method of baking soda. First, that is how to prepare the so baking soda. या कभी कभी नेमिंग रिएक्शन से ही पूछ देता है कि what is the सॉल्वे प्रोसेस और अमोनिया सोडा प्रोसेस. तो सॉल्वे प्रोसेस यानी बेकिंग सोडा को हम प्रिपेयर करने के लिए सॉल्वे प्रोसेस और फिर अमोनिया सोडा प्रोसेस का यूज करते हैं, इन विच ammonia is react with carbon dioxide, water and sodium chloride, then it will be converted into the baking soda and ammonium chloride. So that is the first preparation method of the baking soda. Second preparation method, when sodium carbonate is react with carbon dioxide and water, then it will be converted into the baking soda. That is the preparation method of baking soda. Next, that is the chemical properties of the baking soda. Chemical properties of baking soda, in which first property, when baking soda is react with water. Chemical property, that is a chemical property in which first chemical property, when baking soda is react with water, then baking soda, that is the NaSCO3, it will be react with water, then हाइड्रोलिसिस करें तो ये क्या होगा, ये जो सॉल्ट बना है जिस एसिड और बेस से वो डिवाइड हो जाएगा. तो हाइड्रोलिसिस करेंगे, व्हेन baking soda is react with water, then it will be converted into the sodium hydroxide and carbonic acid. It means when baking soda is react with water, then it will be converted into the sodium hydroxide, or we can say that soda lime and carbonic acid, that is the H2CO3. सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम कास्टिक सोडा के भी नेम से जानते हैं और सोडा लाइम के भी नेम से जानते हैं. तो कंफ्यूज नहीं होना,
कि अगर कहता है कि सोडा लाइम या व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द सोडा लाइम और वी कैन से व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कास्टिक सोडा, तो कास्टिक सोडा, सोडा लाइम और सोडियम हाइड्रोक्साइड ये तीनों एक ही चीज है एंड द फॉर्मूला ऑफ द कास्टिक सोडा या फिर और सोडा लाइम और सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज द सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH. तो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी व्हेन बेकिंग सोडा इज रिएक्ट विद वाटर. सेकंड केमिकल प्रॉपर्टीज व्हेन बेकिंग सोडा is react with acid. So baking soda, that is a metal bicarbonate. When metal bicarbonate is react with acid, then form salt, release the carbon dioxide gas and separate the water. So baking soda is react with HCl that is the acid, then it will be converted into जो भी acid होगा जिस भी तो वो उससे related salt बनेगा. तो baking soda is react with HCl, then form salt. It means that is a NaCl and release the carbon dioxide plus separate the water. That is the second chemical property. It means baking soda is react with hydrochloric acid, then it will be converted into the NaCl that is the sodium chloride that is the salt and release the carbon dioxide gas and separate the water. इसमें एक क्वेश्चन पूछता है, ये भी कह सकता है कि सपोज करो कोई क्वेश्चन दे रखा है बोर्ड के एग्जाम में जनरली पूछता है कि एक कंपाउंड एक्स है जिसका यूज किया जाता है बेकरी प्रोडक्ट को बनाने में. तो उस जब बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है तो उसमें एक कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस इवॉल्व होती है जो कि बर्निंग मास उसके पास उस गैस के पास लेकर के जाते हैं तो वो बुझ जाती है. तो आइडेंटिफाई द गैस. और एक इसमें एक हिंट ये भी देता है व्हेन वी पास दिस गैस इन लाइम वाटर द कलरलेस सॉल्यूशन ऑफ लाइम वाटर इज कन्वर्टेड इनटू द मिल्की व्हाइट. तो आइडेंटिफाई दैट गैस. तो इन दैट कंडीशन क्या होता है ये ध्यान रखना, कभी भी कार्बन डाइऑक्साइड को जब भी हम लाइम वाटर या लाइम वाटर का कलर जो होता है वो कलरलेस सॉल्यूशन होता है, लाइम वाटर दैट इज अ कलरलेस सॉल्यूशन, और जब भी हम कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर में पास कराते हैं तो कलरलेस सॉल्यूशन जो होता है इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द मिल्की व्हाइट कलर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. अगर हम सपोज करें इसी गैस की कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और उसको अगर हम पास करा रहे हैं लाइम वाटर का फॉर्मूला होता है दैट इज CaOH का होल ट्वाइस, और जब इस कलरलेस सॉल्यूशन में हम कार्बन डाइऑक्साइड को पास कराते हैं तो ये कलरलेस सॉल्यूशन जो होता है मिल्की व्हाइट कलर में चेंज हो जाता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. इस कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्मेशन की वजह से दिस कंपाउंड दैट इज अ कैल्शियम कार्बोनेट, इस कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्मेशन की वजह से जो कलरलेस सॉल्यूशन होता है लाइम वाटर का वो मिल्की व्हाइट में कन्वर्ट हो जाता है. तो इससे प्रूफ हो जाएगा कि वो जो गैस रिलीज हो रही है दैट इज अ कार्बन डाइऑक्साइड गैस. तो दैट इज द सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी व्हेन बेकिंग सोडा इज रिएक्ट विद HCl. तो यहाँ पे अगर सपोज करो हम H2SO4 लेते तो यहाँ पे Na2SO4 बनता, बाकी तुम्हारा सेम रहेगा. तो जैसा एसिड लोगे उससे रिलेटेड सॉल्ट बनेगा. तो व्हेन बेकिंग सोडा इज रिएक्ट विद एसिड इट मींस हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमने लिया हुआ है यहाँ पे, तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द सोडियम क्लोराइड, रिलीज द कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड सेपरेट द वाटर. नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज व्हेन वी हीट द बेकिंग सोडा. तो थर्ड केमिकल प्रॉपर्टीज में हमें बेकिंग सोडा को हीट करना. तो जब भी हम बेकिंग सोडा को हीट करेंगे, कभी भी अगर हम सपोज करो बेकिंग सोडा को हीट कर रहे हैं तो बेकिंग सोडा जो है ये डिकम्पोज हो जाएगा, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द सोडियम कार्बोनेट. तो हम यहाँ पे देखते हैं थर्ड दैट इज द थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी व्हेन वी हीट द बेकिंग सोडा. जब भी हम बेकिंग दैट इज द सिंबल ऑफ हीट, जब भी हम बेकिंग सोडा को हीट करेंगे देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द सोडियम कार्बोनेट, सेपरेट रिलीज द कार्बन डाइऑक्साइड एंड सेपरेट द वाटर. ये याद आ रहा होगा हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था दैट इज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें वन रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू द अदर प्रोडक्ट. कोई भी एक रिएक्टेंट अगर टू और मोर देन टू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है तो दैट इज कॉल्ड अ डिकम्पोजिशन. So this type of this reaction that is a decomposition reaction. So when we heat the baking soda, then it will be converted into the sodium carbonate, release the carbon dioxide gas and separate the water. And last, what is the use?
या यूजेज ऑफ बेकिंग सोडा। तो यूजेज ऑफ बेकिंग सोडा का अगर हम यूज बताएं, बेकिंग सोडा का अगर हम यूज की बात करते हैं तो बेकिंग सोडा एक्ट एज एंटी एसिड। सपोज जैसे देखा होगा घर में कि अगर हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है तो घर में मम्मी क्या करती है, बेकिंग सोडा कहती है उसको वाटर में डिजोल्व करो और थोड़ा सा बेकिंग सोडा उसको वाटर में डिजोल्व करके पी जाओ। तो क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि बेकिंग सोडा दैट इज अ बेसिक इन नेचर, बेसिक नेचर का होता है और हमारे स्टमक में क्या एसिड रिलीज होता है, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है तो एसिड रिलीज हो रहा है, तो वो बेस जब हमारे स्टमक में पहुंचता है तो एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं एंड सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन कर देते हैं। इट मींस दैट इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम से रिलीफ मिल जाता है। क्या कहते हैं उसमें भी क्या होता है, दैट इज अ बेस, उसमें भी यही अवेलेबल होता है। और बेस अगर है और हमारे स्टमक में जा रहा है तो एसिड और बेस रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन कर लेगा और हमें एसिडिटी से रिलीफ मिल जाएगा। तो फर्स्ट यूज है इट एक्ट एज अ एंटी एसिड। सेकेंड यूज ये होता है कि इट इज यूज टू प्रिपेयर ऑफ केक, इडली एक्सेट्रा। यानी इसका हम यूज करते हैं केक बनाने में, इडली बनाने में। क्यों यूज करते हैं? तो देखो बेकिंग सोडा हम वहां पे बेकिंग पाउडर यूज करते हैं, सोडा नहीं यूज करते। बेकिंग पाउडर इसलिए यूज करते हैं कि जैसे हम उसमें डालते हैं एसिड के साथ रहता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी इन दैट कंडीशन जो भी आपका केक होगा वो फ्लफी होगा। इसलिए हम बेकिंग यानी बेकरी प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में भी हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट इट इज यूज एज या फिर हम फायर एक्सटिंग्विशर में भी करते हैं। क्योंकि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो आपका फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसमें ये बेकिंग सोडा अवेलेबल होता है और एसिड H2SO4 अवेलेबल होता है। वो जब हम प्रेस करते हैं उसको तो वो एसिड और ये बेस जो है वो रिएक्ट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को गैस को रिलीज करता है जिससे आग जो होती है वो बुझ जाती है। तो दैट इज द यूज ऑफ बेकिंग सोडा। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में क्या डिफरेंस होता है? तो बेकिंग सोडा दैट इज द प्योर फॉर्म ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बट बेकिंग पाउडर जो होता है दैट इज द मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड टार्ट्रिक एसिड। जो बेकिंग पाउडर हमारे घर में यूज होता है वो आपका बेकिंग सोडा और टार्ट्रिक एसिड का मिक्सचर होता है। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि सपोज करो आपकी मदर जो है वो घर में केक बना रही हैं और उस केक में अगर वो बेकिंग पाउडर की जगह बेकिंग सोडा उसमें ऐड कर देती है तो उस कंडीशन में क्या होगा? तो बेकिंग सोडा दैट इज अ बेस एंड बेस का टेस्ट क्या होता है? बिटर होता है। तो जब उस केक में बेकिंग सोडा अगर ऐड वो करेंगे तो उस केक का जो टेस्ट होगा वो बिटर हो जाएगा, वो कड़वा लगेगा। ठीक है, इसीलिए हम कभी भी केक बनाते हैं इन दैट कंडीशन हम बेकिंग सोडा नहीं डालते हैं, बेकिंग पाउडर डालते हैं। और बेकिंग पाउडर जो होता है दैट इज द मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड टार्ट्रिक एसिड। एक बेस और एक एसिड दोनों रिएक्शन करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे तो केक का जो टेस्ट होगा वो बिटर नहीं होगा। तो ये आज के लिए इतना ही है। आगे का जो सॉल्ट है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे।